Problem number 24 for marginal costing. In a recent period, Zach company had the following experiences. Sales 10,000 units, selling price per unit is 200. So amount is 20 lakh. This is a variable cost and this is fixed cost, and net earning is profit. Fixed cost and this is variable, and this is net earning is nothing but profit, 19 lakh 40,000. Now what we have to find in this required, calculate break even point for Zach in units and in rupees. Break even point in units and in rupees, both we have to find in this. Show your calculation and use the contribution margin ratio. Contribution margin ratio is nothing but PV ratio. Contribution means C we will take, no, contribution margin ratio is PV ratio. To find the rupees break even, calculate the use of contribution margin ratio. So next we have what sales rupees would be required to generate a net income. Sales to earn a desired profit formula we have to use for this. And what will be the break even point in units if fixed costs are increased by rupees 18,000. At last again a new break even point we have to find when fixed cost will change. Fixed cost should be increased by 18,000. So sales rupees 10,000 into units 20 lakh it has given. Selling price per unit 200 also it is given. Total variable cost is 14 lakhs. 14 lakhs total variable cost, and per unit is if we divide total variable cost by the number of units, this is 10,000 units, no, so we will get the 140 rupees. 3 4 zeros cancel, 140 we will get it, the variable cost per unit. Now total fixed cost it has given 5,40,000 in the question. Profit net earning is 60,000. Sales minus total cost we will get the profit. This is net earning is nothing but profit, 60,000. BEP in units formula, whenever in per unit we have, we can use this formula. Fixed cost by selling price per unit minus variable cost per unit. Fixed cost 5,40,000 it is given in the question. Selling price per unit 200 is given. Variable per unit is 140. So 5,40,000 divided by 60 we will get the 9,000 units. सेल्स अपने को 20 लाख दे दिए क्वेश्चन में. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिए 200. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल का पूरा टोटल करे तो अपने को 14 लाख हो रहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट. पर यूनिट मालूम करने के लिए टोटल यूनिट्स 10,000 यूनिट्स है जो है ना, ये यूनिट से अपने को जो है सो डिवाइड करे तो अपने को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता. सो 14 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, 140 पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट ऑल्सो इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन. तो बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज so selling price per unit is 200 and variable cost per unit is 140. 200 minus 140 is 60. So 5,40,000 divided by 60 we will get 9,000 units. Next what we have to find in this PV ratio. BEP in rupees it has given, no, B calculation the use of contribution margin ratio. Find rupees break even. यहाँ पर अपन break even point in units लेके भी जो है सो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो अपने को आंसर आता, लेकिन यहाँ पर पीवी रेशियो को यूज करो बोल रहे. सो पीवी कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज नथिंग बट पीवी रेशियो. सी बाई एस. सी क्या होता है? एस माइनस वी भी हो सकता है, प्लस पी भी हो सकता. सो इन दिस प्रॉब्लम वी आर टेकिंग इन द प्लेस ऑफ सी वी कैन टेक एस माइनस वी और एफ प्लस पी. सो वी आर टेकिंग एस माइनस वी बाई एस इन 200. selling price per unit is there, no, 200 minus 140 divided by 200. Per unit only we are using here. 60 divided by 200, 30% we are getting PV ratio. 30% is nothing but we can write it as 0.30 also. So break even point in rupees formula we have fixed cost by PV ratio. Fixed cost 5,40,000 it has given. PV ratio just now we have find out 0.3. So after dividing this we will get 18 lakhs as BEP in rupees. Next is sales required to earn desired profit. When profit is 96,000 the company is earning, so what will be the sales? We have to find it. So sales to earn desired profit formula is sales is equal to fixed cost plus profit, desired profit. This is by PV ratio. Fixed cost 5,40,000, desired profit how much they are saying? 96,000. So 96,000, 6,36,000 divided by PV ratio is 0.30. We will getting 21 lakh 20,000. So sales should be 21 lakh 20,000 to earn desired profit of 96,000. अपने को क्वेश्चन में पीवी ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स आ जाने के बाद सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करें अगर अपन ये यूनिट्स को 9,000 इंटू 200 विल गेट द सेम आंसर ओनली. बट इन द प्रॉब्लम इट हैज स्पेसिफाइड टू अस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो यूज करो बोल रहे अपने को बीईपी में. फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो यही फॉर्मूला यूज करो बोल रहे. इफ इट इज नॉट मेंशन देन एट दैट टाइम यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली बीईपी इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट. इट्स क्लियर नो वाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला? बिकॉज इट हैज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन.
सो पीवी रेशियो क्या है अपने को, सी बाई एस इंटू एस माइनस वी एस प्लस पी। अपने का ये प्रॉब्लम में एस और वी है डायरेक्टली पर यूनिट, सो सिंपली अपन मालूम कर ले सकते हैं यहाँ पर। सो 200 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 200, पीवी रेशियो अपने को 30% 0.3 आ गया। सो बीईपी इन रुपीज फॉर्मूला क्या है, बी फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो 5,40,000 डिवाइडेड बाई 0.3, 18 lakhs बीईपी इन रुपीज, वी गॉट इट। बी बीट में क्या है अपने को, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न, अगर 96,000 प्रॉफिट अर्न करना है कंपनी को तो कितना सेल्स करना, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। सो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 5,40,000, डिजायर्ड प्रॉफिट 96,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो सेम 0.30। सो 6,36,000 डिवाइडेड बाय 0.30, वी आर गेटिंग 21,20,000। तो अगर कंपनी को 96,000 प्रॉफिट करना है तो उन लोगों को सेल्स जो है सो 21,20,000 का सेल करना पड़ता। दैट इज द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट बीट में क्या है अपने को, फिक्स कॉस्ट चेंज करो बोल रहे। इफ फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 18,000, इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन नो। सो फिक्स पहले का फिक्स कॉस्ट 5,40,000 था, 18,000 न्यू फिक्स कॉस्ट, तो ये फिक्स कॉस्ट यूज करे तो अपने को न्यू फिक्स कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन यूनिट्स वी आर फाइंडिंग फर्स्ट। न्यू बीईपी इन यूनिट्स पहले फाइंड कर ले रहे अपन। So new fixed cost by selling price per unit minus variable cost per unit, 9,300 units. So what it has asked in the question, what will be the break even point in units only, it has asked. It's clear, in units only. So if fixed cost increase by 18,000, so in units we are finding new fixed cost को change करना है, selling price per unit will be same, variable cost per unit will be the same. So 9,300 units if fixed cost has increased to 18,000. इट्स क्लियर नो। अपने को क्वेश्चन में क्या दिए कि न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मालूम कर रहे हो, बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करके, ठीक है ना। पहले का फिक्स कॉस्ट कितना था अपने को, 5,40,000 था, उसमें 18,000 इंक्रीज करे तो 5,58,000। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट न्यू फिक्स कॉस्ट बाई सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज। सो 200 माइनस 140, 60, 9,000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, वी आर गेटिंग 9,300 यूनिट्स इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाई 18,000। It's clear no? Now next we will discuss problem number 25. An analysis of Sultan Manufacturing Company Limited led to the following information. Variable cost is as given, percentage of sales it has given. Sales जितना भी है उसका percentage है ये, ठीक है ना। 79%, डायरेक्ट मटेरियल 32, डायरेक्ट लेबर 28, फैक्ट्री ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 1 पर टोटल मिला के जे सेल्स जितना भी है अपने को डायरेक्ट यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिए, 79% है बोल रहे हो सेल्स का, जितना भी सेल्स है। सो फिक्स कॉस्ट इज गिवन हियर। नाउ व्हाट हैज टू फाइंड, बजटेड सेल 18 लाख सेल्स, 18,50,000 सेल्स है अपने को, उसका 17% 9% निकाले अगर अपन तो अपने को वेरिएबल कॉस्ट मालूम हो जाता। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू, वी हैव टू फाइंड profit, we have to find in this at the budgeted sales. When the sales is 18,50,000, what will be the profit? Profit if actual sales drop by 10%, and the third bit में अपने को 2 bits मालूम करना है। The actual sales 18,50,000, if it is decreased by 10%, what will be the profit the company we will get? And increase from 5% from budget. So 3 profits we have to find in this problem. First we have to find break even point. Then we have to find when sales is 18,50,000, what will be the profit? When the sales is dropped by 10%, what will be the profit? And when sales is increased by 5%, what will be the profit? 3 profits we have to find. It's clear with the question? Now total fixed cost it has given, no, we have to add this total fixed cost. So 3,50,000 we are getting the total fixed cost. Variable cost of 79% it has given in the question. It is of variable sales. On sales it has given 75%. So the sales is 18,50,000. 18,50,000 into 79%, we are getting 14,61,500. And this is the sales budget. First we have to find BEP, fixed cost by PV ratio. So fixed cost we have, but we don't have the PV ratio. So we have to find PV ratio. PV ratio is C by S, S minus V or F plus P. So here S we have, we have, divided by sales, we will get into 100, 21%, 0.21 PV ratio. PV ratio, this is in units we are getting. In units we are getting. So fixed cost by 3,15,000 divided by PV ratio. First we have find out the PV ratio. This is the BEP in rupees, fixed cost by PV ratio. So fixed cost
3,15,000. PV ratio 0.21. So 15 lakhs we are getting the break even point in rupees. अपने को ये क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट नहीं दी है, 79% ऑफ सेल्स है ये, ठीक है। सेल्स कितना है अपने को 18,50,000 है, उसका 79% निकाले तो 14,61,500 अपने को वेरिएबल कॉस्ट मालूम करना है ये, ठीक है। ये मालूम कर लिया अपन। फिक्स कॉस्ट ये तीनों को ऐड करें तो ये 3 अमाउंट्स को ऐड करें तो अपने को फिक्स कॉस्ट आ गया 3,15,000। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो है। फिक्स कॉस्ट है अपने पास, पीवी रेशियो नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड द पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, C/S इंटू 100। सी एस माइनस वी भी हो सकता है, F प्लस पी भी हो सकता। तो यहाँ पर अपन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है तो S माइनस वी बाई एस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग पीवी रेशियो एज 21%, 0.21। नाउ बीईपी इन रेशियो बीईपी इन रुपीज का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो है 31 how much we got it just now, the fixed cost 3,15,000 3,50,000 divided by PV ratio 0.21। इसको डिवाइड करें तो अपने को बीईपी इन रुपीज 15 lakhs आ गया। नेक्स्ट बिट क्या फाइंड करना है अपने को, प्रॉफिट का मालूम करना है जब सेल्स 18,50,000 है, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रॉफिट मालूम करना है जब सेल्स इन ड्रॉप हो रहा 10% से डिक्रीज हो रहा, और एक प्रॉफिट मालूम करना है जब सेल्स इंक्रीज हो रहा। सो 3 प्रॉफिट वी हैव टू फाइंड। नेक्स्ट बिट फर्स्ट प्रॉफिट सेल्स जब 18,50,000, ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। और जब अपने को प्रॉफिट इतना सेल्स है, डिजायर्ड प्रॉफिट मालूम करना है तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। जब एस की वैल्यू है अपने को पी मालूम करना है। अगर प्रॉफिट दे दिए क्वेश्चन में, सेल्स मालूम करो बोलते इतना प्रॉफिट हुआ तो कितना सेल्स कंपनी को बनाना पड़ता, दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली। तो अपने को यहाँ पर अब S इज इक्वल टू F प्लस पी बाई पीवी रेशियो। एस है अपने पास 18,50,000, फिक्स कॉस्ट है 3,15,000, पीवी रेशियो 0.21 है। पी अपने को मालूम करना है ये प्रॉब्लम में, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स से पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद पी फिक्स कॉस्ट को माइनस करे तो अपने को प्रॉफिट आ जाता। इट्स क्लियर नो। 18,50,000 इंटू ये डिवाइड कर रहा, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो अपने को 3,88,500 आया। उसमें से फिक्स कॉस्ट कितना है 3,15,000 प्लस पी, प्रॉफिट अपने को मालूम करना है। ये फिक्स कॉस्ट इधर प्लस है, इधर आ गया तो माइनस हो जाता। सो 3,88,500 माइनस 3,15,000 प्रॉफिट वी आर गेटिंग व्हेन द सेल्स इज रुपीज 18,50,000, 73,500 कंपनी कैन अर्न द प्रॉफिट। अगर वही सेल्स को लोग डिक्रीज कर दिए 10% से 16,65,000 अगर सेल्स हो रहा तो कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर सकती। तो सेम अपने को यही मेथड में सेल्स की जगह पे 16,65,000 लिखना है। सो सेल्स इज 16,65,000, फिक्स कॉस्ट सेम है 3,15,000, पीवी रेशियो भी सेम है 0.21। ये न्यू प्रॉफिट मालूम करना है अपने को। तो सेम सेल्स से पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करें अपन, उसके बाद फिक्स कॉस्ट से माइनस करें तो प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट 34,650 आया। जब कंपनी 10% से अगर सेल्स को डिक्रीज कर दिए तो 34,650 प्रॉफिट अर्न कर सकते। अगर सेल्स को अगर इंक्रीज कर दिए वो लोग 18,50,000 से और 5% उसमें ऐड करें तो 92,500 हो रहा। सो 19,42,500 सेल्स अगर है तो सेम फॉर्मूला अपने को न्यू प्रॉफिट मालूम करना है। सो 19,40,500 इंटू पीवी रेशियो वी आर गेटिंग 40,7925। उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिए तो प्रॉफिट 92,925 द कंपनी इज गेटिंग द प्रॉफिट। इट्स क्लियर नो। सो इन दिस प्रॉब्लम 3 प्रॉफिट्स वी हैव फाइंड आउट। 18,50,000 सेल्स है तो व्हेन इट वाज देयर, सो इन फिक्स कॉस्ट इज 3,15,000, P we have to find, PV ratio is 0.21. So we have to multiply sales into PV ratio, we are getting 3,88,500. From there we have to deduct fixed cost, we will get the profit. Same way when first we have to take out the 10% of 18,50,000, 18,15,000 10%, 1,85,000. We have to minus because the sales is drop means decreasing. 18,50,000 we have to minus 1,85,000. The new sale will be 16,65,000. Now this new sales we have to multiply with PV ratio. From there we have to minus fixed cost. So new profit when the sales is 16,65,000, 34,650. Same way when the sales is increased by, so first we have to take out the 5% of 18,50,000. 5% of 18,50,000 we are getting 92,500. It's clear no? So 18,50,000 plus 92,500, 19,42,500. This is the new sales we are getting. On this again we have to find the profit. So same way sales into PV ratio we have to multiply. We are getting 44,79,25. From there we have to deduct fixed cost 31,500. So new profit we are getting 92,925. Now next problem.
We'll see 26th problem. From the following data, certain break-even point. We have to find the break-even point in this problem, and selling price, trade discount also it has given in this trade discount, and variable cost we have to add this. Fixed overheads 10,000, variable overheads 100% of direct labor. That means direct labor is 2 rupees, no? So variable overheads again 2 rupees is there. So total 7 rupees variable cost we are getting in this problem. If sales are 10% and 15% above break-even sale volume, determine the net profit. In this problem, two conditions are given to us. If sales are 10% and 50% above break-even sales volume, what will be the net profit? So selling price per unit we have taken 10 rupees, trade discount we have to deduct. So actual selling price 9.5. Variable cost 3 rupees, direct labor, direct material, direct labor, overhead 100% means 2 rupees again of this direct labor we have to add. We will get variable cost per unit is 7 rupees. So fixed cost it has given. Break even point in unit formula is fixed cost by selling price per unit minus variable cost per unit. So 10,000 divided by 2.5, 4,000 break even point in units we are getting. In units we have break even point in units. If we multiply with the selling price per unit, we will get the break even point in rupees, 38,000 rupees. सो ये प्रॉब्लम में अपने को सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिए 10 रुपीज़, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके एक्चुअल सेलिंग प्राइस अपने को मालूम करना है पर यूनिट. सो 10 रुपीज़ का 5% कितना होता 0.50. सो वी हैव टू माइनस दिस 10 रुपीज़ माइनस 0.50, 9.50 सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया अपने को. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपीज़ है, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज़ है. वेरिएबल ओवरहेड भी एक अलग से है. 100% लेबर जितना हो रहा ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड भी उतना ही हो रहा. तो अपने को लेबर 2 रुपीज़ है, तो वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा भी 100% में सेम 2 रुपीज़ ही जो होता. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टोटल 7 रुपीज़ आ गया. फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है अपने को 10,000. ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स पहले मालूम कर रहे अपन. उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो 10,000 माइनस 9.50 माइनस 7 2.5. सो 10,000 डिवाइडेड बाई 2.5 करें तो अपने को ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 4,000 यूनिट्स वी आर गेटिंग. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर मल्टीप्लाई करें तो अपने को ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ मालूम हो जाता. हियर इट हैज नॉट गिवन ब्रेक इवन पॉइंट, इट हैज गिवन नो. तो यूनिट्स में भी अपन ब्रेक इवन पॉइंट और रुपीज़ में भी फाइंड कर लिए. नेक्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर? इफ सेल्स आर 10% एंड 15% अबव ब्रेक इवन पॉइंट. अबव मीन्स वी हैव टू ऐड दिस. नाउ इफ सेल्स आर 10% अबव ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट विल बी द प्रॉफिट? नंबर ऑफ यूनिट्स पहले कितने थे अपने को? 4,000 यूनिट्स थे. अब 10% बढ़ाए तो 4,400 यूनिट्स आ गए. नाउ सेल्स कितना होता अगर 4,400 इन यूनिट्स को 9.5 से सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो 41,800 अपने को सेल्स हो गया. उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है. 4,400 यूनिट्स इंटू 7 कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता. उसमें से फिक्स कॉस्ट 10,000 माइनस करें तो अपने को प्रॉफिट मालूम होता. ठीक है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करें तो प्रॉफिट. एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी है ना अपने को. तो सेल्स उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें, फिक्स कॉस्ट को माइनस करें तो अपने को प्रॉफिट आता. इट्स क्लियर नो? What it has given in the question? 4,000 units BEP we got it. So they are asking us to increase 10%. So 10% means 400 we are getting. 4,000 into 10% you do, you will get 400. 4,000 plus we have to do because we have to add it. Above it has given now. Above means drop means minus. Above means add. Clear? It's clear no? So 4,400 units. Multiply it by 9.5 sales value we are getting. Then same way 4,400 into 7 we are getting variable cost. After deducting sales minus variable cost, we are getting contribution. From contribution, if we minus fixed cost, we will get profit. Same way, 15% we have to take. Same for 10%, how we have done just now. Same way, 15%. 4,000 into 15% first we have to calculate. We are getting 600. Now we have to add. So total units is 4,600. 4,600 units we have to multiply it by 9.5. Selling price per unit 43,700 is the sales. Variable cost 4,600 into 7 32,200. We are getting contribution 11,500. From there we have to minus fixed cost. We are getting profit 1,500. तो जब सेल्स अपने को 10% अगर अपन ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स को इंक्रीज करे तो प्रॉफिट 1,000 आया. और जब 15% अगर ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स को इंक्रीज करे तो प्रॉफिट 1,500 आ रहा. इट्स क्लियर नो? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट.